الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے وظائف سے فائدے کیوں نہیں ہوتے۔ یہ ایک بڑا اہم اور ایک منفرد عنوان ہے۔ اس پر گفتگو کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں، کوئی نوکری کے لیے، کوئی اولاد کے لیے، کوئی شادی کے لیے اور مختلف کاموں کے لیے، تو ان کو وظائف پڑھنے کے لیے بتائے جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وظائف بزرگان دین، اولیاء کاملین سے سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں، اور احادیث میں بھی ذکر ہے، اور مستند وظائف ایسے بھی ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں، جن پر سرکار نے خود بھی عمل کیا اور آگے بھی صحابہ کو بتایا، پھر وہ سلسلہ آگے چلا۔ لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جب لوگوں کو وظائف بتائی جائیں تو کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے 40 دن تک یہ وظیفہ پڑھا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ کہتے جی 2 مہینے تک ہم نے پڑھا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کوئی آ کے کہتا جی میں تو 1 سال سے پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ جی ہماری تو نوکری نہیں لگی، اسی طرح ہم پھر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اولاد نہیں ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ جی رشتہ نہیں ہوا، آپ نے کہا تھا کہ جی یہ وظیفہ پڑھ لیں آپ کا رشتہ ہو جائے گا، ہم نے 40 دن پڑھا، ہم نے 2 مہینے پڑھا، ہم نے 1 سال پڑھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اب غور کرنے کا ایک مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام انسان پڑھے اور فائدہ نہ ہو، یہ بات تو ناممکن ہے۔ اس کے کلام میں تو اثر ہے نا، اور بعض تو قرآنی آیات بتائی جاتی ہیں، قرآنی صورتیں، اور اس کے پڑھنے کے بعد فائدہ نہ ہو۔ تو جب ہم نے ان تمام چیزوں پر غور کیا تو مشاہدے میں بہت ساری ایسی چیزیں آئیں کہ جن کی وجہ سے وظائف اثر نہیں کرتے، فائدہ نہیں ہوتا، اور وہی چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ چیزیں ہم کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وظائف بھی پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا اثر جو ہے وہ پھر زائل ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان پڑھتا ہے، اس کو ثواب ضرور ملے گا، ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے، لیکن جو اس کے اثرات، جو اس کے فوائد مرتب ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے۔ تو اب آئیے اس میں ان تمام چیزوں پر غور کریں اور ان چیزوں کو آپ دور کر لیں، انشاءاللہ تعالی بعینہ اثر ہوگا، جیسا کہ احادیث میں، جیسا کہ بزرگان دین اولیاء کاملین کے اقوال میں آیا ہے، اسی طرح بالکل اس کے اندر اثرات پیدا ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے نوٹ کی اور لوگوں نے یہ بتایا کہ جی ہم نے وظیفہ پڑھا اور فائدہ نہیں ہوا، وہ سب سے پہلی چیز ہے نماز کی پابندی نہ کرنا۔ دیکھیے نماز ہر عاقل بالغ مرد عورت پر، مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب نماز جو فرض ہے وہ آپ نے ترک کر دی، اور وظیفہ جو مستحب ہے وہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یعنی فرض کو چھوڑ کر مستحب کے پیچھے جب جائیں گے تو فائدہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ وظیفہ نہیں پڑھیں گے تو قیامت میں سوال نہیں ہے کہ تم نے فلاں وظیفہ کیوں نہیں پڑھا، لیکن نماز اگر ترک کر دی جائے گی تو قیامت میں سوال ہوگا، کیونکہ یہ آپ پر فرض ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جو لوگ وظائف پڑھنا چاہتے ہیں، پہلی چیز 5 وقت نماز کی پابندی۔ فجر پڑھی تو ظہر غائب، ظہر پڑھی تو عصر غائب، عصر پڑھی تو مغرب، مغرب پڑھی تو عشاء، بلکہ اکثر تو فجر تو غائب ہی غائب ہوتی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم تو مسلسل اللہ الصمد پڑھ رہے ہیں، تو کوئی کہتا ہے یا باسی تو پڑھ رہے ہیں، تو کوئی کہتا ہے یا ذوالجلال والاکرام پڑھ رہے ہیں، جو وظیفہ، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا۔ اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نہیں جی نماز کی پابندی تو نہیں ہوتی، فجر میں تو آنکھ نہیں کھلتی، ظہر میں
ऑफिस में होते हैं, असर रास्ते में गुजर जाती है, मगरिब में घर पहुंचते हैं, इशा में थक हार के सोते हैं, तो पता चला 5 नमाजें गायब। तो जब आप 5 नमाज जो आपकी ड्यूटी है, आप पर फ़र्ज़ है, अदा नहीं करेंगे और उसके बाद फिर वजीफ़े की पाबंदी करेंगे तो वजीफ़े में कैसे असर होगा। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ जो है, जो भी आदमी वजीफ़ा पढ़ना चाहता है, कोई भी वजीफ़ा पढ़े, पहली चीज़ ये है कि 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे, उसके बाद वजीफ़े की पाबंदी करे। अच्छा, दूसरी चीज़ है वज़ाइफ की पाबंदी ना करना। 5 वक्त नमाज आप पढ़ रहे हैं, लेकिन एक दिन आपने वजीफ़ा पढ़ा, 4 दिन छोड़ दिया, फिर एक दिन पढ़ा, फिर 8 दिन छोड़ दिया, तो इस तरह पाबंदी नहीं होगी। 40 दिन, कम से कम 40 दिन मुसलसल वो वजीफ़ा पढ़ा जाए, तब आप देखें कि उसके असरात मुरतब होंगे। तो अक्सर जो फ़ायदा नहीं होता उसकी वजह यही है कि नमाज की पाबंदी तो है लेकिन वजीफ़े की पाबंदी नहीं। अगर आप एक दिन पढ़ें, 4 दिन नहीं, फिर एक दिन तो 8 दिन नहीं, तो फिर इस तरह नहीं होगा। तो पहली चीज़ नमाज की पाबंदी, दूसरी चीज़ वजीफ़े की भी पाबंदी। तीसरी चीज़ ये है कि वजीफ़े के दौरान गुफ्तगू करना। बहुत से लोगों को देखा कि वो काउंटर ले लेते हैं और मसलन अल्लाह समद है एक वजीफ़ा, या हय्यो या क़य्यूम है, या बासितो है, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, मुख्तलिफ वज़ाइफ भी चल रहे हैं, बातें भी चल रही हैं, वज़ाइफ भी पढ़े जा रहे हैं, गुफ्तगू भी हो रही, और गुफ्तगू भी हर किस्म की हो रही, अच्छी भी है, बुरी भी है, ग़ीबत भी है, चुगली भी है, सारी चीज़ें हो रही और साथ साथ वजीफ़ा भी चल रहा है। कभी फ़ायदा नहीं होगा। और ये फैक्ट है, हकीकत है कि एक वजीफ़ा आप बिल्कुल अलहदा बैठ कर हुजरे में रुजूए इल्लाह होकर तमाम ख्यालात अपने जहन से निकाल कर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए एक जगह बैठ कर पढ़ें, उसके बाद आप दुआ करें तो अलग कैफियत होगी। महसूस होगा कि हाँ, कोई कह रहा है कि मांगो, हम देने के लिए तैयार, उसमें असर भी होगा, दुआ भी कबूल होगी। और एक वजीफ़ा आप ऐसे पढ़ें कि आप महफिल में बैठे हैं, वजीफ़ा भी है, बातें भी हो रही हैं, और उसके बाद आप दुआ करें, क्योंकि खुशू खुजू नहीं है, इसलिए दुआ में भी खुशू खुजू नहीं हो। तो ये दो चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। तो इसमें ज़रूरी ये है कि अगर आप वजीफ़ा पढ़ें तो कोशिश करें कि अलग हुजरे में बैठकर पढ़ें, अपने कमरे में बैठकर पढ़ें, और अगर ये नहीं तो मस्जिद में बैठकर पढ़ें। कोशिश ये करें कि पढ़ने के दौरान किसी किस्म की गुफ्तगू ना हो। उसके बाद जब आप दुआ करेंगे तो फिर आप देखेंगे, महसूस होगा कि हाँ, कोई चीज़ हमारे सीने के अंदर आई है, रूहानियत दाखिल हुई है, उसका कैफ, उसका सुरूर, उसके फ़वाइद, ये सब खुद ब खुद आपको महसूस होंगे। चौथी चीज़, बग़ैर इजाज़त अपनी मर्ज़ी से वजीफ़ा पढ़ना। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी वजीफ़ा जो है व्हाट्सएप पर डाल देता है, यूट्यूब पर डाल देता है। अच्छा, लोगों को शौक़ होता है कि ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें। कोई वजीफ़ा आया, फ़ौरन देखा, उसको पढ़ा, कोई दिन पढ़ा, छोड़ दिया, फिर किसी ने दूसरा डाल दिया, पढ़ा, छोड़ दिया। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, जिस तरह हम कोई दवा बग़ैर तबीब के मशवरे के इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसी तरह कोई वजीफ़ा भी बग़ैर इजाज़त नहीं पढ़ सकते। इनका मामला भी यही है, बाज़ जलाली हैं और बाज़ जमाली। बाज़ की तादाद ऐसी है कि अगर तादाद बढ़ा दी जाए तो जलाली हो जाएगा, और तादाद कम कर दी जाए तो जमाली है। तो जो इस रास्ते का मुसाफिर है उस पर लाजिम है कि इस रास्ते के शेख रहनुमा से राब्ता कायम करे, जो गुज़र चुका है उससे पूछे कि इस रास्ते कैसे गुज़रा, जो इन वज़ाइफ को पढ़ चुका उससे मालूम करे कि किस तरह पढ़ना। वरना नतीजा यही होगा कि हमने अपनी मर्ज़ी से वजीफ़ा सोशल मीडिया पर देख लिया, व्हाट्सएप पर किसी ने डाल दिया, इतनी मरतबा पढ़ने तो फ़ायदा है, इतनी मरतबा पढ़ने तो फ़ायदा है, आपने पढ़ना शुरू कर दिया। ना आपको उसकी तादाद का पता है, ना उसके जलाली होने का पता है, तो फिर उसमें फ़ायदा नहीं होगा। सवाब ज़रूर मिल जाएगा, इसलिए कि अल्लाह ताला का कलाम है, उसका नाम है, उसका ज़िक्र है, लेकिन जो फ़वाइद आप हासिल करना चाहते हैं वो नहीं होंगे। जबकि अपने पीर या अपने शेख की मर्ज़ी से, उनकी इजाज़त से कोई वजीफ़ा आप पढ़ेंगे तो वो उसका तरीक़ा भी बताएंगे
किस तरीके पे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, सुबह पढ़ना है या रात को पढ़ना है या 24 घंटे इसका विर्द करना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बताएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि बग़ैर इजाज़त कुछ ना पढ़ें। हाँ, कुरान करीम की कोई आयत हो तो उसमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं, कुरान करीम की सूरत हो उसमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं। कुरान अल्लाह का कलाम, अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक रहमत रहमत है, करम ही करम है। जो सूरत चाहे पढ़ें, जो आयत चाहे पढ़ें, अपना मामूल बना लें। तो इसलिए इस बात को अपने पेश नज़र रखें। पांचवी चीज़ जो इस चीज़ को, इसके फ़ायदे को रोकती है, टीवी के सामने बैठकर या मोबाइल लेकर फिर वजीफ़ा पढ़ना। इसमें क्या होता है, आपका जहन उस तरफ है, मसलन टीवी चल रहा है और आप अल्लाह समद पढ़ रहे हैं, अगर उसमें कोई गलत सीन है, गलत ड्रामा है, गलत किस्म की चीज़ें हैं, तो वो चीज़ इस चीज़ को काट रही है, इसके सवाब को, इसके खुशू और खुजू को वो ख़त्म कर रही। तो ज़रूरी ये है कि टीवी बंद कर दिया जाए, आप एक तरफ तवज्जो करके पढ़ें, मोबाइल बंद कर दें, तवज्जो एक तरफ हो, फिर आप पढ़ें। तो फिर आप देखेंगे कि कैफ़ सुरूर हासिल होगा, खुशू व खुजू पैदा होगा और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें भी नाजिल हों। एक साहब आए, उन्होंने कहा कि जी मैंने 40 दिन तक वजीफ़ा पढ़ा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपने कहा था फिर 40 दिन पढ़ो, फिर मैंने पढ़ा, फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने कहा अच्छा ठीक है, आप 2-3 दिन के बाद आएँ, फिर हम गौर करके बताएंगे कि मसला क्या है, फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा। आप जिस मसले के लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं वो हल क्यों नहीं हो रहा और आपके मसले क्यों नहीं हल हो रहे। पता चला कि जब उनके घर वालों से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि हज़रत ये तो टीवी चल रहा होता है, इधर इनका वजीफ़ा चल रहा होता है, ड्रामा भी चल रहा है, वजीफ़ा भी चल रहा है, टीवी में कोई गलत चीज़ आ रही है वो भी है और साथ में वजीफ़ा भी। तो रहमान और शैतान, ज़िक्र आप रहमान का कर रहे हैं और शैतानी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है। तो बेहतर सूरत यह है कि खुशू खुजू के साथ, रुजू इल्लाह के साथ, फिर आप अपने जहन से तमाम ख्यालात को निकाल कर एक तरफ तवज्जो करके फिर आप पढ़ें, तो देखें अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी। छठी चीज़, वज़ाइफ के साथ साथ, यानी वजीफ़ा भी है, पाबंदी भी आप कर रहे हैं और उस दौरान टीवी भी नहीं देख रहे, अलग बैठकर आपने वजीफ़ा पढ़ा, लेकिन वजीफ़े के अलावा मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, फहश गोई कर रहे हैं और गलत किस्म की गालियाँ ये आप दे रहे हैं। और इसका भी मुशाहिदा में हुआ कि एक साहब थे, उनको कुर्ब इलाही का एक वजीफ़ा बताया गया, तो 1 साल के बाद जब उनसे मुलाकात हुई तो उनका हज़रत मुझे तो कोई अपने अंदर कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं हुई। हमने कहा क्या? आपने कहा था ये कुर्ब इलाही का वजीफ़ा है, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होगा, उसकी रहमतें बरकतें मिलेंगी, लेकिन 1 साल से मैं पढ़ रहा हूँ पाबंदी से, मुझे अपने अंदर कोई तब्दीली या कोई ऐसी अल्लाह ताला की तरफ से कोई करम, कोई रहमत या कोई निशानी ऐसी मुझे ज़ाहिर नहीं हुई। हमने कहा आप पाबंदी से पढ़ना? जी मैं पाबंदी से पढ़ा। अच्छा गौर करेंगे फिर बताएंगे। फिर हमने उनके हालात का जायज़ा लिया और जब देखा तो अपने जो नौकर हैं उनके बग़ैर गाली के उनसे बात नहीं करते और गालियाँ भी बहुत ज़्यादा फहश और गलत किस्म की, यानी जो सुनना भी आदमी गवारा ना करे, उनके ऊपर अपना रौब डालने के लिए। फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको गालियाँ, ड्राइवर है तो उनको गालियाँ, नौकर है तो उसको गालियाँ, मतलब ये कि गाली के बगैर बात नहीं। और उसके बाद जब बैठे तो फिर दूसरों की ग़ीबत हो रही है, चुगली हो रही है, दीगर चीज़ें हो रही। फिर हमने जायज़ा लेकर उनको बताया कि देखिए, एक तरफ आप अल्लाह ताला को राज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं, वजीफ़ा पढ़ रहे हैं कुर्ब इलाही के लिए, दूसरी तरफ उसकी नाफरमानी कर रहे हैं। उसने कहा किसी की दिल आज़ारी ना करो, उसने कहा फहश गोई ना करो, उसने कहा गलत बात ज़बान पे ना लाओ। तो ज़बान को एक तरफ पाक किया जा रहा है, दूसरी तरफ नापाक किया जा रहा है। गलत गालियों से, फहश गोई से, ग़ीबत से, चुगली से, दिल आज़ारी से, इन तमाम चीज़ों से ज़बान नापाक हो रही है।
اور दूसरी तरफ आप वजीफा पढ़ना कुर्ब इलाही का, तो कैसे हो सकता है? दो चीजें एक जगह कैसे जमा हो सकती? इसीलिए फायदा नहीं हो रहा कि सबसे पहले आप अपनी जबान पर कंट्रोल करें, झूठ पर, गीबत पर, इस पे कंट्रोल करें, और जो गालियां आप गलत किस्म की दे रहे हैं उस पर कंट्रोल करें। जब आपकी जबान इन चीज़ों से रुक जाएगी, वजीफ़ा अपना असर करेगा, आपकी ज़बान में भी असर होगा, आपकी निगाह में भी असर होगा, और आपके आमाल व अफ़ाल व किरदार वो भी पाकीज़ा हो जाएंगे। तो अक्सर यही देखा गया है कि जो लोग ये तमाम चीज़ें करते हैं कभी भी उनको फ़ायदा नहीं होता। तो जो राह सलूक के मुसाफिर हैं, इस राह में कदम रख चुके हैं, उन पर यह लाजिम है कि नमाज की पाबंदी और वज़ाइफ की पाबंदी के साथ इन तमाम चीज़ों को भी तर्क करें, अपनी ज़बान की हिफाजत करें, अपनी ज़बान को झूठ, गीबत, चुगली, दिल आज़ारी, फहश गोई, इन तमाम गलत बातों से रोक लें ताकि ज़बान में असर पैदा हो। और जब ज़बान में असर पैदा होगा तो दुआएं कबूल हो जाएंगी। जिसके लिए भी हाथ उठाएंगे अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल फरमा लेगा। सातवीं चीज़, लोगों में एक आदत है कि जिसने कोई वजीफ़ा बताया वो पढ़ लिया। अच्छा, हमारे माशरे में एक चीज़ ये है, अगर हमें किसी चीज़ से फ़ायदा होता है तो हम दूसरे को बता देते। मसलन ये कि जिस्मानी तौर पर भी कि किसी को किसी दवा से फ़ायदा हुआ, किसी को किसी टोटके से फ़ायदा हुआ, वो कहते जी आपको खांसी है आप ये कर लें, आपको नज़ला है आप ये कर लें, आप फला चीज़ गर्म करके खा लें, फला चीज़ उसमें मिला के खा लें, आम तौर पे। और रूहानी तौर पर भी यही कैफियत। अगर किसी ने कोई वजीफ़ा पढ़ा, किसी साहिब इजाज़त से इजाज़त लेकर उसने पढ़ा, अपने शेख से पूछ कर पढ़ा, फ़ायदा हुआ, अब उसको आगे बताने की इजाज़त है या नहीं है, उसने आगे बता दिया। हालांकि होना ये चाहिए कि आपको अगर कोई वजीफ़ा बताया गया है तो अपने शेख से ये इजाज़त लें कि वो आप आगे बता सकते हैं या नहीं। हाँ, अगर आपको इजाज़त है, बहुत से वज़ाइफ़ ऐसे हैं कि हम बता देंगे ठीक है आप इसको आम कर दें, आगे लोगों को बता दें, कहा व्हाट्सएप पे दे दें, व्हाट्सएप पे दे। लेकिन आजकल ये सिलसिला चल रहा है कि एक वजीफ़ा पढ़ा और जिसने भी बताया बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तस्दीक किए फ़ौरन पढ़ना शुरू कर दिया। तो जो राह सलूक के मुसाफिर हैं उन्हें चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने शेख के बताए हुए वज़ाइफ़ को पढ़ें, बाकी वज़ाइफ़ ना पढ़ें। आठवीं चीज़, एक चीज़ होती है ना हिर्स, हवस, हल में मज़ीद, हल में मज़ीद, हल में मज़ीद, यानी मुझे मिल जाए, एक घर हो तो दो, दो घर हो तो तीन, एक गाड़ी हो तो दो, दो गाड़ियाँ हो तो तीन, सारी चीज़ें। इसी तरह हवस जो है वज़ाइफ़ की भी है। एक वजीफ़ा आप पढ़ रहे हैं, किसी ने बताया कि मैं तो दलाइल खैरात पढ़ रहा हूँ, आपने वो भी शुरू कर दी। किसी ने कहा मैंने दुरूद ताज पढ़ा, आपने वो भी शुरू कर दिया। किसी ने कहा दुआए उज़्ज़ुल बैर में पढ़ रहा हूँ, आपने वो भी शुरू कर दिया। अब देखिए, वज़ाइफ़ पढ़ने में नुकसान नहीं है, दलाइल खैरात दुरूद है, जितना भी आप पढ़ें। इसी तरह दुरूद ताज, ये भी दुरूद है, बहुत सारे दुरूद हैं। दुआए हिज़्ज़ुल बहर बुज़ुर्गान दीन का एक रूहानी तोहफ़ा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया हज़रत शेख अबुल हसन अली शादली रहमतुल्लाह अलैह को। लेकिन एक दिन सारे वज़ाइफ़ पढ़े और दूसरे दिन कुछ भी नहीं पढ़ा। आम तौर पर यह देखा गया, यानी शौक़ होता है पढ़ने का कि हम पढ़ लें, लेकिन इस्तिक़ामत नहीं होती। अगर शौक़ है और इस्तिक़ामत नहीं है, कभी भी फ़ायदा नहीं हो। 10 चीज़ें पढ़ने के बजाय एक चीज़ पढ़ें, मुसलसल पढ़ें, पाबंदी के साथ पढ़ें, इस्तिक़ामत के साथ पढ़ें। आप देखें उसी में सारी बरकतें, सारी रहमतें उसी में, सारे फ़वाइद उसी से मिलेंगे। हम देखते हैं ना बुज़ुर्गान दीन औलिया कामिलीन की सीरत उठाकर, तो कोई दुआए हिज़्ज़ुल बहर का आमिल है, तो कोई सूरह मुज़म्मिल का आमिल है, कोई दलाइलुल खैरात अपनी पाबंदी के साथ पूरी ज़िंदगी पढ़ता रहा, कोई या हय्यो या क़य्यूम का आमिल है। यानी अल्लाह तबारक व तआला के कितने अस्माए मुबारक हैं। बुज़ुर्गान दीन ने एक नाम को, एक इस्म पाक को अपना वजीफ़ा बना लिया, सारी ज़िंदगी इस्तिक़ामत के साथ पढ़ते रहे, उसी के ज़रिए सबको फैज़ पहुँचा दिया। हमारे सिलसिला अशरफिया में हमारे मशाइख़ तरीक़त दुआए हिज़्ज़ुल बहर
سورہ مزمل شریف اور سورہ اخلاص، یہ 3 چیزیں جو ہیں خصوصیت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ ہمارے مشائخ طریقت نے پڑھی، اس کا باقاعدہ چلہ کیا ہے اور ساری زندگی اس کو پڑھتے رہے اور اس کا فیض انہوں نے پہنچایا اور اپنے مریدین کو بھی اس کے چلے کرائے اور ان کو بھی آگے کہا کہ وہ آگے بتائیں، لیکن استقامت کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک دن سورہ مزمل پڑھی تو دوسرے دن سورہ رحمان تو تیسرے دن سورہ واقعہ، مختلف صورتیں نہیں۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ 10 وظائف پڑھنے سے بہتر ہے، یعنی 10 وظائف آپ نے ایک دن پڑھے اور دوسرے دن کچھ بھی نہیں پڑھا، بالکل میدان صاف ہو گیا۔ تو 10 وظائف پڑھنے سے بغیر پابندی کے بہتر ہے کہ ایک وظیفہ پابندی کے ساتھ پڑھا جائے۔ پانی کی ایک بوند، اس میں کیا ہے؟ پتھر کے آگے اس کی حقیقت کیا ہے؟ لیکن پانی کی ایک بوند مسلسل پتھر پر گرتی ہے تو اس میں بھی گڑھا پیدا کر دیتی۔ یہی استقامت کی مثال ہے کہ انسان ایک وظیفہ پڑھے، پابندی کے ساتھ پڑھے، مسلسل پڑھے، استقامت کے ساتھ پڑھے، اسی میں سب کچھ ہے، اسی سے اس کو سارے فوائد حاصل ہوں گے اور اسی کے ذریعے وہ آگے فیض پہنچا سکتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں اور دوستوں، یہ 8 چیزیں ہم نے آپ کو بتائیں کہ جن کی وجہ سے وظائف میں اثر نہیں ہوتا اور وظائف فائدہ نہیں دیتے۔ آج ہم واویلا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا فائدہ نہیں ہوا، فلاں چیز پڑھی فائدہ نہیں ہوا، ایک بزرگ نے بتایا تھا وظیفہ پڑھ لو فائدہ ہو جائے گا لیکن نہیں ہوا۔ تو جو چیزیں اس کو روکنے والی ہیں، پہلے آپ ان چیزوں کو روک لیں۔ جو چیزیں اس کے اثر کو ختم کرنے والی ہیں، آپ ان چیزوں کو ختم کر دیں۔ پھر آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اس کا ذکر ہے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اور صرف اس کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ مولا میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں تو مجھے اپنی رضا کی سند عطا فرما، میں تیری رضا کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ تو جب رب راضی ہو جائے گا، پوری کائنات راضی ہو جائے گی۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ امید ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ نے بغور سن لی ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی مسافران راہ سلوک، یعنی جو راہ سلوک طے کرنے والے ہیں، ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھیں گے اور جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کو روکنے والی ہیں ان کو ختم کر دیں گے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان تمام وظائف کو، ان تمام آیت قرآنی کو ان طریقوں پر پڑھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو طریقے بزرگان دین نے، اولیاء کاملین نے اور احادیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔